اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا ریموٹ کنٹرول آ جائے جو آپ کے دماغ کے فضول شور کو ایک کلک پر بند کر دے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ زائد سوچ اوور تھنکنگ آخر بلا کیا ہے، لیکن آج اس دوسرے حصے میں ہم اس چہرے سے نقاب اٹھائیں گے جسے مصنف نے ہمارا سب سے بڑا اندرونی دشمن کہا ہے، یعنی ہمارا اندرونی نقاد، انر کرٹک، اور ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈنے کی وہ بیماری جو ہمیں کبھی کام شروع ہی نہیں کرنے دیتی۔ اگر آپ بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں تو اگلے چند منٹ آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں۔ مصنف اس باب میں ہمیں زائد سوچ، اوور تھنکنگ کے ایک خطرناک ترین سرچشمے کی طرف لے جاتا ہے جسے وہ اندرونی نقاد، انر کرٹک کا نام دیتا ہے۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر بستی ہے، جو ہمارے ہر عمل پر تبصرہ کرتی ہے، ہمارے ہر فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جب بھی ہم آگے بڑھنے کا کوئی نیا قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پرانے گناہوں اور غلطیوں کی یادیں تازہ کر دیتی ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ یہ آواز لازمی نہیں کہ کوئی واضح اور براہ راست سنائی دینے والی صدا ہو، بلکہ اکثر اوقات یہ ان تیز رفتار خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے جو ہمارے شعور کی گرفت میں آئے بغیر ذہن سے گزر جاتے ہیں، جیسے اپنی کامیابی کی صلاحیت پر شک کرنا، آغاز سے پہلے ہی ناکامی کا گمان کر لینا، یا دوسروں سے اپنا ایسا موازنہ کرنا جو ہمیں کم طریقے احساس میں مبتلا کر دے۔ مصنف بتاتا ہے کہ یہ اندرونی نقاد عام طور پر بچپن ہی سے شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم نے زندگی کے اہم لوگوں سے سنی ہوتی ہیں، یا ناکامی کے ان تلخ تجربات کا اثر ہوتا ہے جنہوں نے ہمارے نفس پر گہرے گھاؤ چھوڑے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ آواز محض ایک عارضی رائے نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت بن جاتی ہے جسے ہم بنا کسی سوال کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ یوں ہم خود ہر نئے چیلنج کے سامنے اپنے آپ کو یہ منفی پیغامات دہرانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہماری اندرونی شناخت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مصنف اس اندرونی نقاد کے طریقہ کار کا ایک اہم تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نقاد کبھی براہ راست اور صاف الفاظ میں سامنے نہیں آتا، بلکہ یہ اکثر احتیاط اور جھوٹی دانشمندی کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ جب یہ آواز ہم سے کہتی ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مزید سوچنے کی ضرورت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت احتیاط ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ عمل کو ٹالنے اور ناکامی کے خوف سے فرار کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ یہاں اس باب کا تعلق پچھلے باب سے واضح ہوتا ہے۔ یہی اندرونی نقاد وہ بنیادی محرک ہے جو انسان کو کثرت فکر کے اس دائرے میں دھکیلتا ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں مصنف ایک ایسے شخص کی مثال دیتا ہے جو کسی کاروباری میٹنگ میں اپنا موقف یا رائے پیش کرنا چاہتا ہے۔ تبھی اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے جو کہتی ہے کہ اس کی رائے اتنی اہم نہیں ہے، یا دوسرے اس کا مذاق اڑائیں گے، یا بہتر یہ ہے کہ وہ مزید تیاری کا انتظار کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کامل تیاری کبھی نہیں آتی، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ شخص میدان دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہی اندرونی آواز دوبارہ بیدار ہوتی ہے اور اسے ملامت کرتی ہے کہ اس نے حصہ کیوں نہیں لیا اور موقع کیوں گنوا دیا۔ یوں یہ لامتناہی چکر چلتا رہتا ہے۔ مصنف زور دے کر کہتا ہے کہ اس اندرونی نقاد سے نمٹنے کا پہلا قدم اسے طاقت کے بل بوتے پر خاموش کرانا یا نظر انداز کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ اس کی موجودگی کو محسوس کرنا سیکھیں۔ ہم اس لمحے کی نشاندہی کریں جب یہ آواز بولنا شروع کرتی ہے اور اپنے ذہن میں اسے ایک واضح نام دیں۔ مثلاً اپنے آپ سے کہیں، یہ میرے اندرونی نقاد کے خیالات ہیں، یہ میری صلاحیتوں کے بارے میں کوئی حتمی سچائی نہیں ہے۔ ملاحظہ اور نامزدگی کا یہ سادہ سا عمل ہمارے اور اس آواز کے درمیان ایک نفسیاتی فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم وہ آواز خود نہیں رہتے، بلکہ ہم اسے باہر سے دیکھنے والے آبزرور بن جاتے ہیں، اور یہی فاصلہ اس کے چنگل سے آزادی کی ابتدا ہے۔ ساتھ ہی مصنف تعمیری تنقید کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور تخریبی تنقید ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم میں فرق کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ تعمیری تنقید یہ بتاتی ہے کہ کس پہلو کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اصلاح کا عملی طریقہ بھی تجویز کرتی ہے۔ تخریبی تنقید یہ کوئی عملی حل پیش نہیں کرتی، بلکہ صرف یہ رٹ لگائے رکھتی ہے کہ آپ اس کام کے اہل ہی نہیں ہیں، جس سے خوف اور شک کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں اور ہر ملامت گر آواز کو سننا عاجزی یا احتیاط سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں ایک ایسی آواز کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے جو انہیں کبھی آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ اختتام اس اہم خیال پر کرتا ہے کہ اندرونی نقاد سے نجات کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی غلطیوں پر غور کرنا چھوڑ دے یا خود کو بہتر بنانے کی کوشش ترک کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آواز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے، یعنی یہ ہمارے اندر گونجنے والی بہت سی آوازوں میں سے محض ایک آواز ہو، نہ کہ وہ واحد فیصلہ کن صدا جو ہماری تقدیر اور فیصلوں کا تعین کرے۔
तीसरा बाब, कमाल पसंदी का फ़ख जो कभी मुकम्मल नहीं होता। मुसन्निफ इस बाब का आगाज़ एक इंतहाई आम नफ्सियाती मजहर यानी कमाल पसंदी परफेक्शनिज्म से करता है। वो शुरू ही में वाज़ह कर देता है कि कमाल की ये जुस्तजू आम तासुर के बरअक्स किसी बुलंद परवाज़ी या आलीज़ मेयार की दलील नहीं है, बल्कि अक्सर औक़ात ये एक निकाब है जिसे नाकामी के खौफ और दूसरों की मनफी राय के डर ने ओढ़ रखा है। जो शख्स काम शुरू करने से पहले हालात के 100% साजगार होने का इंतजार करता है, या जो एक सादा से खत को इरसाल करने से पहले दर्जनों बार लिखता और मिटाता है, वो दरअसल उस वहम में जी रहा होता है कि सोच विचार और नजरी सानी से किसी काम का एक कामिल और बेऐब रुख हासिल किया जा सकता है। हालांकि हकीकत यह है कि इस मादी दुनिया में कमाली मुतलक परफेक्शन का कोई वजूद नहीं। मुसन्निफ बताता है कि कमाल पसंदी का कसरत फ़िक्र से बराही रास्त ताल्लुक़ है। हर बार जब एक कमाल पसंद इंसान अपने काम को मजीद निखारने की कोशिश करता है, तो वो दरअसल तिकरार फ़िक्र का एक नया दरवाज़ा खोल देता है। वो उन्हीं बारीक बैन तफैसुलात को बार बार देखता है और ऐसे सगीर अयूब तलाश करता है जिन पर किसी दूसरे की नज़र भी नहीं पड़ सकती। इंजामे कार वो इन तफसीलात में गर्क हो जाता है जो काम की असल कदर में कोई इजाफा नहीं करती, बल्कि महज उसका वो वक्त और तवानाई ज़ाया करती हैं जो कहीं और इस्तेमाल हो सकती थी। मुसन्निफ इस रवैये की जड़ों की वजाहत करते हुए एक दिलचस्प नुक्ता पेश करता है कि कमाल पसंदी की बुनियादें तनकीद या मुस्तरद किए जाने के गहरे खौफ में छुपी होती हैं। जो शख्स इस बात से डरता है कि इसके काम को नाकिस कहा जाएगा, वो खुद को मजीद नजरी सानी के हिसार में बंद कर लेता है। गोया वो खुद से कहता है कि अगर वो काम को बिल्कुल बेऐब बना देगा तो किसी को तनकीद का मौका ही नहीं मिलेगा। मगर अलमिया ये है कि यह हदफ बजाते खुद नाकाबिल हुसूल है, क्योंकि कमाल का मेयार हर शख्स की नज़र में मुख्तलिफ होता है। यूं वो कमाल पसंद इंसान एक लामतनाही दौड़ में लगा रहता है, जहां मेहनत बढ़ती चली जाती है और उसके मुकाबले में हासिल होने वाले नताइज की कीमत कम होती जाती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसकी मिसालें दर्ज झैल हैं। वो तालिब इल्म जो अपने तहकीकी मकाले रिसर्च पेपर को सिर्फ इसलिए जमा नहीं करवाता कि उसके ख्याल में एक पैराग्राफ को मजीद बेहतर किया जा सकता है, यहाँ तक कि आखिरी तारीख गुजर जाती है और वो अपने पूरे काम की जांच का मौका ही गंवा बैठता है। वो कारोबारी शख्स जो अपने आइडिया को बरसों तक खुफिया रखकर उस पर काम करता रहता है कि अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं, जबकि उसी दौरान दूसरे लोग मार्केट में उससे सादा आइडिया लेकर आते हैं और हकीकी तजर्बे और लोगों की राय फीडबैक की रोशनी में उसे बतदरीज बेहतर बनाकर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। मुसन्निफ एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करता है कि कमाल पसंदी एक ऐसा जमूद पैदा करती है जो इंसान को आगाज़ करने से ही रोक देता है। बहुत से लोग किसी भी मंसूबे को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं कि वो इसे मिसाली तरीके से शुरू करना चाहते हैं, और इस ताख़ीर का मतलब ये होता है कि वो कभी अमली जामा पहनाने के मरहले तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी आयद करदा शर्त ही गैर हकीकी थी। यहाँ मुसन्निफ एक सुनहरी उसूल पेश करता है जो पूरी किताब में मुख्तलिफ जगहों पर दोहराया गया है। हकीकी तरक्की अधूरे मगर मुसलसल अमल से आती है, ना कि इस कामिल अमल के इंतजार से जो कभी वजूद में नहीं आता। मुसन्निफ कमाल पसंदी और इज्जत नफ्स सेल्फ एस्टीम के ताल्लुक पर भी बहस करता है। वो बताता है कि कमाल पसंद लोग अपनी ज़ाती कीमत का अंदाज़ा अपने काम के मेयार से लगाते हैं। अगर काम अच्छा हुआ तो वो खुद को कीमती समझते हैं, और अगर काम में कोई मामूली नुक्स रह गया तो वो अपनी ज़ात को ही नाकिस तसव्वुर करने लगते हैं। ये खतरनाक ताल्लुक हर छोटे काम को एक वजूदी इम्तिहान एग्जिस्टेंशियल टेस्ट बना देता है, जिससे जहनी तनाव उरूज पर पहुंच जाता है और इंसान नए कामों से कुतराने लगता है। इस मजहर से निमटने के लिए मुसन्निफ चंद अमली तदाबीर पेश करता है, जिनमें सबसे अहम मेयारी किफ़ायत स्टैंडर्ड ऑफ गुड इनफ का तयन है। यानी इंसान काम शुरू करने से पहले ही तय कर ले कि किस हद तक का काम काबिल कबूल और काफ़ी होगा, बजाय उसके कि वो लामतनाही इस्लाह का दरवाज़ा खुला छोड़े। इसी तरह मुसन्निफ बहादराना पहले एडिशन द करेजस फर्स्ट ड्राफ्ट की हौसला अफजाई करता है, यानी इंसान अपने आप को इजाज़त दे कि वो अपने काम का पहला नाकिस नुस्खा बाहर लेकर आए और ये एतमाद रखे कि उसकी इस्लाह बाद में हकीकी दुनिया के तजर्बात से हो जाएगी, बजाय उसके कि वो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर फर्जी अयूब का नक्शा बनाता रहे। बाब का इख्तिताम इस वजाहत पर होता है कि कमाल पसंदी से निजात का मतलब मेयार या महारत अल-इत्कान को छोड़ना नहीं है, बल्कि महारत की नए सिरे से तारीफ करना है, जिसमें काम को वक्त पर मुकम्मल करने और आगे बढ़ाने की सलाहियत भी शामिल हो। तीसरा हिस्सा, फैसलों का बोझ और तशवीश की आदत। चौथा बाब, लामतनाही फैसलों का बोझ। इस बाब में मुसन्निफ एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करता है जिससे हर इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुजरता है मगर उस पर गौर नहीं करता, और वो है उन छोटे बड़े फैसलों की बहुतात जो हमारा दिमाग हर रोज़ करता है। सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है, किसी पैगाम का क्या जवाब देना है, से लेकर कैरियर, ताल्लुकात और मुस्तकबिल के बड़े फैसले तक।
मुसन्निफ वाज़े करता है कि इनमें से हर एक फ़ैसला हमारी महदूद ज़हनी तवानाई का एक हिस्सा मसरफ़ में लाता है। नफ्सियाती तहकीकात के मुताबिक ये ज़हनी तवानाई लामतनाही नहीं है, बल्कि दिन भर के फ़ैसलों के साथ साथ ये घटती चली जाती है, जिसे नफ्सियात में फ़ैसला साजी की थकन, डिसीजन फटीग कहा जाता है। ये थकन किसी जिस्मानी निकाहत की सूरत में ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि फ़ैसलों के मेयार में गिरावट की शक्ल में सामने आती है। जो इंसान सुबह के वक्त मुतवाज़िन और जानदार सोच का मालिक होता है, वो शाम तक आते आते जल्दबाजी, जज्बाती फ़ैसलों या फ़ैसले से बिल्कुल फ़रार इख्तियार करने का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी सुबह की ज़हनी तवानाई उन दर्जनों छोटे फ़ैसलों में ज़ाया हो चुकी होती है जो ज़ाहिरन गैर अहम थे। मुसन्निफ मिसाल देता है कि दुनिया के कई कामयाब तरीन अफराद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिबास या खाने पीने जैसी चीज़ों के लिए एक ही मुस्तकिल रूटीन रखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, बल्कि वो जानते हैं कि उन मामूली बातों पर सोचना भी ज़हनी तवानाई का ज़िया है, जिसे वो अपने काम के अहम फ़ैसलों के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। यहाँ से ये बुनियादी उसूल सामने आता है। ज़िंदगी में गैर अहम और छोटे फ़ैसलों की तादाद को कम करके हम अपने जहन को इन बड़े फ़ैसलों के लिए फारिग और यकसू कर सकते हैं जो वाकई हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। फिर मुसन्निफ फ़ैसलों के बोझ की एक और किस्म का जिक्र करता है, जिसे वो फ़ैसले की जगाली करना, डिसीजन रूमिनेशन कहता है। बहुत से लोगों का सफ़र फ़ैसला करने पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो फ़ैसला करने के बाद भी सोचते रहते हैं, क्या मेरा फ़ैसला दुरुस्त था? क्या कोई दूसरा रास्ता बेहतर था? अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? ये बात की सोच फ़ैसले की हकीकत को तो नहीं बदल सकती, मगर ये जहन पर खौफ और शक की एक नई तह ज़रूर चढ़ा देती है। उसकी जड़ें इंसान की इस ख्वाहिश में होती हैं कि वो फ़ैसला करने से पहले और बाद में मुकम्मल यकीन, सर्टेनिटी चाहता हो, जबकि ज़िंदगी खुद तगय्युरात से भरी पड़ी है। एक बेहतरीन फ़ैसला वही है जो इस वक्त दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर किया जाए, ना कि मुस्तक़बिल के गैब दानी पर, जिसका इल्म किसी को नहीं। यहाँ मुसन्निफ दो इस्तिलाहात मुतारिफ करवाता है। काफ़ी फ़ैसला, सैटिस्फायर सफिशिएंट डिसीजन, जो दस्तयाब और मंतकी मालूमात पर मबनी हो, बग़ैर तमाम इम्कानी पहलुओं को निचोड़े। ये एक अमली और पुरसुकून तरीका है। कामिल फ़ैसला, मैक्सिमाइज़र बलॉन ऑप्टिमल डिसीजन, जिसके पीछे लोग बिलावजह भागते हैं और हर इम्कानी पहलू को काबू करना चाहते हैं, जो कि वक्त और तवानाई का ज़ाया करना है। मुसन्निफ इंतखाब का तज़ाद, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी बयान करता है कि इख्तियारात की कसरत फ़ैसले को आसान नहीं बल्कि मुश्किल बनाती है। जितने ज़्यादा रास्ते होंगे, इंसान मुवाज़ने में उतना ही वक्त बर्बाद करेगा और इस खौफ में मुब्तला रहेगा कि कहीं बेहतरीन मौका हाथ से ना निकल जाए। हल ये है कि पहले से ही वाज़ेह मेयार मुकर्रर कर लिए जाएं, ताकि गैर मुनासिब इख्तियारात को फौरी तौर पर खारिज करके सिर्फ चंद अच्छे मुतबादलात पर तवज्जो मरकूज़ की जा सके। बाब के आखिर में मुसन्निफ कुछ अमली तरीक़े बताता है। छोटी चीज़ों में लकीर के फ़कीर, आदात के पाबंद बन जाएं, फ़ैसले के लिए एक वक्त मुकर्रर करें ताकि सोच लामतनाही ना हो, और ये तस्लीम करें कि हर अच्छे फ़ैसले में भी थोड़ा बहुत इबहाम, अनसर्टेनिटी होना एक फितरी अम्र है, ना कि आपकी सोच का कसूर। पाँचवां बाब, तशवीश जब रोज़मर्रा की आदत बन जाए। मुसन्निफ उस बाब को क़लक़ और तशवीश, एंग्जाइटी के नाम करता है, जो ज़ायद सोच का सबसे बड़ा सबब भी है और उसका नतीजा भी। वो सबसे पहले फितरी तशवीश और देरीना तशवीश में फ़र्क वाज़ेह करता है। फितरी व आर्जी तशवीश, नेचुरल एंग्जाइटी, ये एक हयातियाती ज़रूरत है जो किसी हकीकी ख़तरे के वक्त इंसान को चौंकना और तैयार करती है। देरीना तशवीश, क्रॉनिक एंग्जाइटी, ये वो कैफियत है जो ख़तरे के टल जाने या उसके सिरे से मौजूद ना होने पर भी इंसान के आसाब पर सवार रहती है, यहाँ तक कि खुद तशवीश ही एक मुस्तकिल मसला बन जाती है। मुसन्निफ बताता है कि ये मुस्तकिल तशवीश एक ज़हनी आदत से जुड़ी है, जिसे वो बदतरीन मुमकिना मंजरनामा सोचना, वर्स्ट केस सिनारियो थिंकिंग कहता है। कुछ लोगों का जहन किसी भी सूरत हाल का सिर्फ तारीक तरीन रुख देखने का आदी हो जाता है, और वो इस फर्जी मंजर को अपने दिमाग में इस तरह जीते हैं जैसे वो वाकई वकूअ पजीर हो चुका हो। इसका नतीजा ये निकलता है कि दिमाग जिस्म में तनाव के वही हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, खारिज करना शुरू कर देता है जो किसी हकीकी हादसे के वक्त होते हैं, हालांकि खतरा अभी सिर्फ एक ख्याल की हद तक था। उसका मतलब ये हुआ कि एक तशवीश पसंद इंसान अपनी ज़िंदगी में उन हादसात और तकलीफ़ों को अपने जहन के अंदर सैकड़ों मरतबा झीलता है जो शायद हकीकत की दुनिया में कभी रोनुमा ही नहीं होती। ये ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का वो ज़िया है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसे हकीकी ज़िंदगी में कारआमद इक़दामात करने के लायक नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये था हमारे अंदर छुपे इस नकात का चेहरा जो हमें कमाल पसंदी के जाल में फंसा कर रखता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि हर वक्त दिमाग में चलने वाले इस लामतनाही फ़ैसलों के बोझ और तशवीश की आदत से निजात कैसे पाई जाए।
उसी का हल मुसन्निफ ने अगले हिस्से में बताया है। इस सफ़र के तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस ज़हनी शोर को हमेशा के लिए खामोश करना सीखेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली किस्त आने पर आपको फ़ौरन इत्तिला मिल। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहा हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं पार्ट 3 में।